पिछले क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे, उसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, क्वेश्चन इज नोटेड हियर, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दैट x minus 1 plus x minus 3 at x equal to 2. This is the function fx is given. If the derivative of the function, this is second question, this is the first. So what is the derivative values, how we can find, क्या आएगा और कैसे find करेंगे, what is the f dash x. For that first we write this equation. इसको पहले हम explicitly यहाँ पे इसको राइट करेंगे, what is the fx. So fx is given here, x minus 1 plus x minus 3. So this is the modulus function. So first we break this form. When this negative, यानी x is when less than 1. X is less than 1, what happened? This become what? Minus x minus 1 and minus x minus 3. Understood? Because this become negative, so when this become negative means the we take the sign minus. So minus of x minus 1 minus x minus 3 when x is less than 1. Now when x is greater than equal to 1, x is greater than equal to 1 and less than equal to 3, then what happen here? 1 and 3 के बीच x is greater than equal to 1 and less than equal to 3, then in this case this positive become x minus 1 or minus of x minus 3. This and third point, when x is greater than equal to 3. So x is greater than equal to 3, then this become what? X minus 1 plus x minus 3. Both are positive, x is greater, so in this case we cannot take the negative sign. So x minus 1 plus x minus 3. So it can be written as, so I hope that you have written this equation. I have write this equation, the value of the derivative of the function f x minus 1 plus x minus 3 at x minus. Explicitly I have break this function in this form. So what this become? So now we erase this. Then what happen here? So fx is clearly minus of x plus of 1 and minus of x plus of 3, means minus of 2x plus 1 and plus 3 plus 3 plus 1 plus 4 when x is less than 1. From here x minus 1 x cancel out, minus 1 plus 3 any 2, this become 2, x is greater than equal to 1 and less than equal to 3, less than 3, not equal, less than 3, and
फ्रॉम हियर x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, तो 2x माइनस 4. x is greater than equal to 3. So this is our function. Now fx equal to, it can at x equal to 2. The question is written at x equal to 2. So what happen? When x equal to 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? We can find this thing. x equal to 2, that belongs to x is greater than 1 and less than equal to. So what is here? Here f dash x is, चूँकि 2 belongs in that interval. So what is here? f dash x इक्वल टू 0. क्या कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन विल बी 0. तो डिफरेंशिएशन 0 व्हेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 3. तो सिंपली वी कैन फाइंड दिस थिंग. हेंस f डैश x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2. हेंस f डैश इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2. दिस इज योर. तो समझ में आया. यहाँ पे मेन हमें क्या करना है कि इसको पहले एक्सप्लिसिटली आपको ब्रेक कर देना है. मॉडुलस फंक्शन का जो मैंने डिफिनेशन बताया था कि मॉड ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0. एक्स इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव. Then this become minus of minus x and this become always positive and x equal to 0, that value is 0. This is the modulus. तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसका पहले मॉडुलस फंक्शन का, और मोस्टली क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख लेंगे. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इज गिवन हियर. f(x) इज व्हाट? ax square plus bx is less than minus 1, or bx square ax plus 4x is greater than equal to minus 1, is everywhere continuous and differentiable at x equal to 1 and differentiable at x equal to 1. Then what value of ab? मैंने a की वैल्यू पूछा, a equal to 2, b equal to, मैंने find the value of ab. What is ab? सो फर्स्ट यू राइट कर लीजिए क्वेश्चन को, देन वी कैन राइट. यहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं x इक्वल टू 1 में. सो नाउ आई इरेज दिस. सो यू नो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. फंक्शन इज कंटिन्यूअस everywhere. Everywhere continuous means what? First, fx is given here or differentiable at x equal to 1. So f dash x is what? f dash x को भी आप लिख लीजिए. ये हो गया 2ax when x is less than minus 1, or this is what? 2bx plus a when x is greater than equal to minus 1. ओके. सो फॉर ये कह रहा है कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस है. इसका मतलब कि एट x इक्वल टू माइनस 1 इसका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होंगी? इक्वल होंगी. लेफ्ट हैंड वैल्यू, राइट हैंड वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू द फंक्शन एट x इक्वल टू माइनस 1. तो पहले कंडीशन आप यहाँ से रख लो सीधा सीधा. x इक्वल टू माइनस 1 वी पुट हियर, और इन दोनों को क्या कर दें? इक्वेट कर दें. सिंस द फंक्शन इज
लिखेंगे कि सिंस द फंक्शन इज continuous everywhere, so this implies that at x equal to -1, what happen here? A left hand limit equal to right hand, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को आप इक्वल करेंगे तो a ऑफ -1 जो पीछे बताया गया था आपको होल स्क्वायर प्लस ऑफ b, दिस इज इक्वल टू b प्लस a प्लस 4, हाँ -1 तो दिस बिकम -a, b minus a plus 4. So what here? a plus b and b minus a plus 4 यानी 2a, b cancel out, तो so 2a equal to 4, so a equal to 4/2, this is 2. So we have find this value a equal to 2, we have find a equal to 2, a equal to 2 आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं पहले आप उसको यहाँ पे फाइंड करेंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन कि b इक्वल टू, okay, so far how we can find this b? तो b के लिए हमें f डैश x, चूंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस और यहाँ पे चूंकि ये डिफरेंशिएबल है f डैश x, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा एट x इक्वल टू माइनस, ठीक है। चूंकि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल सो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये पहले बताया गया था, नहीं तो आप नोट कर लेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, but every continuous function is not differentiable, यानी वाइस वर्सा इसका कंप्लीट नहीं है, इनवर्स नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं अप्लाई करेगी, बट डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो कंटिन्यूटी को इंगिट करेगा। एंड डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूअस है तो ये कोई जरूरी नहीं वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी। सो एट x इक्वल टू 1 यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वेट कर देंगे। x इक्वल टू -1, ये -1 पे चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो -1 पे ये कंटिन्यूअस भी होगा। कंटिन्यूअस होगा मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम हियर सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन व्हाट हैपन हियर, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स इक्वल करेंगे एंड वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होता है तो आप यहाँ से करेंगे, क्योंकि a वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 2a और x इक्वल टू -1, तो -1, दिस इज इक्वल टू 2b -1 प्लस a, तो b is -1 2a, what right here, तो you write here -2b plus a equal to minus of 2a, so this become what, 2a और ये become this one minus of 3a minus 2b
equal to minus of 3a. Now put the value of a equal to 2, so 6. Or this will be cancelled, so b equal to 3 into 2, 6, 6 by 2, 6 by 2, this become 3. तो b equal to 3 and a equal to 2 and a equal to 2. तो ये क्वेश्चन हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बता रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे कि इस टाइप से आएगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन का किया तो मॉडुलस फंक्शन आपको कई क्वेश्चंस में आपको वहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको फाइंड। अब एक तरह का और भी इसमें बताएंगे कि कैसे हम रेंज और वो फाइंड करते हैं कि किस रेंज में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दैट थिंग्स वी कैन डू आफ्टर 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, देन वी हैव फिनिश दिस थिंग। सो नाउ सम थ्योरम, सम प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट में इट कैन पहले से राइट किया हुआ है तो आप देख सकते हैं, इसमें नोट भी कर सकते हैं, ये नोटेबल है। डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल टू ऑल पॉइंट्स बिलोंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच के सभी पॉइंटों के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल। तो सो ए फंक्शन f(x) defined in open interval ab if it is differentiable at each point of ab. Differentiability in closed interval, a function f ab such that from a to b to r real number is said to be differentiable in closed interval. अब closed interval में ये भी पॉइंट आ गया और ये भी पॉइंट आ गया। इसका मतलब कि पहले तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल, और सेकेंड केस क्या आएगा कि इस पे जो आएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पे जो आएगा वो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव्स नॉट लिमिट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एट ए और राइट हैंड डेरिवेटिव्स एट बी, ये दोनों क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए पे हमें क्या होना चाहिए, राइट हैंड, ए प्लस ए से आगे बढ़ना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स एट ए हमें, और इस पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट बी, बी इज दैट पॉइंट, ए पॉइंट। तो राइट हैंड एट ए एंड लेफ्ट हैंड एट बी, ये ध्यान रखना होगा, लेफ्ट हैंड बी। तब वह उस ओपन क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यानी ये हम कहें कि अगर क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है दो पॉइंट एंड पॉइंट्स पे, तो वो फंक्शन ओपन में तो अपने आप हो गया, दिस इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें, कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछ लिए जाते हैं तो बस अंडरस्टैंडिंग रहेगा, सो यू कैन डू दिस थिंग। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या मतलब होता है, यानी ऑल होल रियल नंबर, रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, एक्सटेंड रियल नंबर नहीं। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ आर, देन इट्स सेड टू बी एवरीवेयर differentiable, then it said to be everywhere differentiable. For example, constant function ले लीजिए, this is everywhere differentiable, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉलिनोमियल है, sin x cos x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो इट्स आर। और ये सम रिजल्ट्स यू कैन नोटेड हियर, सेम थिंग जो ऊपर हमने कहा, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, टीचर होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वांसेंट जो डिफाइंड है, कोसेंट में भी
अगर वो दो फंक्शन के डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनके सम प्रोडक्ट और उनका कोसेंट भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, बशर्ते वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए एट दैट रीजन। तो ये आपका पॉलिनोमियल, इसको आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इन दो फंक्शन का अगर हम कंपोजिशन फंक्शन करते हैं देन इट इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होगा। नाउ कुछ एग्जाम्पल करते हैं, सम एग्जाम्पल, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल। इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, हाउ वी कैन डू दिस थिंग, कि इसका सेट पॉइंट क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द सेट पॉइंट। जैसे इसका इंटरवल गिवन है आपको a -∞ to ∞, लाइक दैट। इसी तरह से b दिया होगा, c है, एंड लाइक दैट। अब क्या होगा ये हम इसको फाइंड आउट करेंगे। हाउ वी कैन फाइंड आउट, तो फर्स्ट वी फाइंड देयर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, सो फाइंड द डेरिवेटिव f(x) डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, पहले तो इस पूरे फंक्शन का होगा, तो दिस इज 1/2 √1 - (-e⁻x² पे पावर -1/2, ऐसे ही इसको लिख देता हूँ, क्योंकि 1/2 -1, तो दिस बिकम -1/2, ये आपको पता है। और देन डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ 1 - (e⁻x²। सो व्हाट दिस बिकम 1/2, ये -1/2 है, इसको रूट में यहाँ पे कर लीजिए, 1 - (e⁻x²। d/dx ऑफ 1 0, और इसका हो जाएगा माइनस, तो ये बिकम हो जाएगा प्लस, क्योंकि -(x²), तो ये हो जाएगा -(2x), तो ये हो गया प्लस, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 2x। और e⁻(-x²), 2x e⁻(-x²), क्योंकि e⁻(x²) को आप t मानोगे तो वही आएगा, सेम थिंग, e⁻−t, और उसका t क्या करेंगे 2d, ये आपको आता है। तो 2x, यानी ये वैल्यू हो गई, 2 कैंसिल हो गया, दैट इज व्हाट x e⁻−x² अपॉन √1 - (e⁻). इस तरह के जो भी क्वेश्चन दिए हों, सबसे पहले आप, अगर ये सब पूछता है कि कहाँ उसका ओपन में है, तो गिवन फंक्शन को फर्स्ट वी डिफरेंशिएट करने के बाद देखेंगे कि कहाँ पे वैल्यू वो डिफाइंड हो रहा है और नॉन डिफाइंड हो रहा है। ये कोसेंट फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ, देन एट दैट पॉइंट f(x) इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 होगा, व्हेन x = 0, और 0 हो जाएगा तो ये 1 - 1 मीन्स दिस बिकम 0, 0 into that quantity, this become undefined quantity. So the function is differentiable everywhere except at x = 0, except at x = 0. So what is the value of x = 0 पे अब देखेंगे फंक्शन है क्या। अब ये फंक्शन एट x = 0 पे क्या है,
ये देखना होगा। यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 0 पे ये नहीं है, तो जो भी होगा पहले आप यहाँ से पता कर लेंगे। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर except at x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे होगा क्या, यानी x इक्वल टू पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। सो फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। सो नाउ अब यहां से देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ f0 इज 0, यानी अंडर रूट 1 माइनस e टू द पावर माइनस h स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ h। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस लिमिट। अब इस लिमिट को कैसे फाइंड करना होगा, सो क्या करेंगे इसको, क्योंकि अभी तो 0/0 केस हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको चेंज कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट e टू द पावर h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e पावर h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस h इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट e टू द पावर h स्क्वायर। सो e टू द पावर h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h इंटू 1 अपॉन e पावर h स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, e पावर h स्क्वायर तो 1 हाँ एस नाउ टेक कर लेते हैं इसको, यानी दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट e पावर h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर माइनस माइनस तो खैर बाहर ही कर लें, इसको h कर लेते हैं, नथिंग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस साइन विल बी हियर, या यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस 1 अपॉन e टू अंडर रूट e टू द पावर h स्क्वायर। इसमें तो h 0 रखने पे दैट वैल्यू बिकम माइनस 1, और ये भी क्या हो जाएगा आपका अब 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि h स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर दो तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस h फोर्थ h स्क्वायर 20, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट वैल्यू इज़ 1 और दैट वैल्यू इज आल्सो 1 माइनस 1, सो दिस बिकम माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस 1, सो व्हाट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए। एट राइट हैंड डेरिवेटिव इज दैट थिंग आ जाएगा यहाँ पे।
माइनस एच हट जाएगा यानी ये आ जाएगा +1, सो दिस बिकम +1। तो यहाँ पे -1 आ रहा है और यहाँ पे +1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स at x equal to 0. So function at x equal to 0 is not differentiable. यहाँ से नहीं कह देंगे जो हमने अभी फाइंड किया था f'(x), तो यहाँ से नहीं कहेंगे x इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब 0 पे हमें चेक करना होगा। ऐसा नहीं कह देंगे कि 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हमेशा नहीं होगा, या इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा नहीं होगा। सो फर्स्ट यू चेक दैट उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स उस पर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है यानी फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। लेकिन यहाँ से f'(x) से इतना हम जरूर फाइंड कर लेंगे कि ये कहाँ किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो रही है, माने नहीं हो रहा है, मतलब जिस पे अनडिफाइंड हो रहा है, फिर केवल वही पॉइंट आपको चेक करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो है क्या, हमें 0 को छोड़ना है, तो -∞ से 0 में ओपन इंटरवल 0 हमें नहीं लेना और इसी का यूनियन कर देंगे 0 to ∞। तो ये हमारा इंटरवल गिवन होगा और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि इस रीजन में हमारा फंक्शन है। तो ये हर एग्ज़ाम में लगभग आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा ही जाता है, तो इसको आप कर लेंगे। द फंक्शन f(x) e⁻ mod x इज continuous everywhere but not differentiable at x equal to 0, continuous and differentiable at x equal to 0. अब how we can know this? Either you know about the graph of that function, then you are quickly done this thing. Otherwise it is also how we can do this mathematically. So कैसे करेंगे? तो पहले हमने बताया था कि इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली लिख लेंगे। क्या होगा? दिस बिकम e⁻ x when x is greater than 0, तो x ही रहेगा। एंड दिस बिकम व्हाट? e⁻ माइनस पहले से है और माइनस ऑफ x e⁻x, x is greater than 0. When you write this, then what this become? X is less than 0 and this become e⁻ of -x, x is less than 0, means this become what? e⁻x. So directly we write here e⁻x. अब इसको हम लिख दे रहे हैं, so this become e⁻x. At x equal to 0 the value is 1, no problem, you know this thing. So what do you this इसमें हम क्या कर सकते हैं? f0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर फंक्शन की 0 पे वैल्यू हमें निकालनी तो f0 is 1, ये हमें पता है। अब इसको देख लो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, यही है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड मतलब दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x, दिस बिकम 1। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x, and this become 1. Right hand limit is what? It is also 1, right hand limit also, और this value is also equal to f0. इसका मतलब कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया,
नाउ डिफरेंशियबिलिटी कुछ जगह पूछ रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे इसका डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा? सो व्हाट इज द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन? तो इसके लिए भी हमने यही बताया था, आप इसका लेफ्ट हैंड निकाल लो और इसका राइट हैंड लिमिट निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे? e टू द पावर माइनस एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स व्हेन लिमिट x टेंस टू 0। सो दिस बिकम व्हाट? डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स -1 e टू द पावर माइनस एक्स राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में क्या आएगा? +1। तो यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे आएगा -1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो वी से दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका आप फाइंड कर लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज व्हाट? लिमिट, ऐसे ही लिख लें, अगर डी बाई डी एक्स कर लें x टेंस टू 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, दिस बिकम -1। और राइट हैंड के लिए दिस इज राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड, x इज लेस देन 0 मीन्स दिस, ये है लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज आल्सो, यहाँ पे क्या होगा? माइनस नहीं रहेगा, e टू द पावर x का 1, यानी ये वैल्यू भी 1 आ जाएगी, +1। तो ये +1 आ रहा है और ये -1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब यही नहीं इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल नहीं है। वेयर? एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। सो यू नोट दिस थिंग, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू से f(x) be a function differentiable at x equal to c, then limit x tends to c f(x) is equal। तो ये तो बहुत सिंपल है, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे, जब डिफरेंशिएबल है कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब कि जो लिमिट होती है, लिमिट अगर वो इसकी एग्जिस्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू किसके इक्वल होगा? उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुआ। तो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, उनको भी हम लोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से कर सकते हैं इसको। द फंक्शन f(x) x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, x नॉट इक्वल टू 0, f(0) 0 दिया है एट x इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस, यह कॉन्टिन्यूअस है या नहीं ये बताना है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, यह कॉन्टिन्यूअस है या बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इज डिसकॉन्टिन्यूअस, सी कह रहा है इज हैविंग कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव, यानी इसके डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहा है, और इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, क्या ये बोथ है? कॉन्टिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। सो हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसका लिमिट निकाल, इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करें। तो फर्स्ट यू फाइंड द लिमिट ऑफ दैट। सो व्हाट इज द लिमिट? लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट देख लीजिए एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। लिमिट x टेंस टू 0, x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, दिस इज व्हाट? चूंकि यह 0 है और ये एनीथिंग फ्रॉम -1 to 1 इसकी वैल्यू आएगी, -1 से 1 के बीच में, और दैट इज 0, तो दिस वैल्यू इज 0, ये 0 आएगा।
नाउ फंक्शन की भी वैल्यू यहाँ पे दी हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट कर रही है और वो उसके इक्वल है। इसका मतलब कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। अब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि नाउ फाइंड दैट 0 माइनस एच प्लस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा f0 प्लस h, यानी ये हो गया h स्क्वायर साइन 1 बाई h माइनस ऑफ f0 मीन्स 0 अपॉन minus h, and also from here राइट हैंड के लिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो दैट वैल्यू इज 0 बिकॉज एच एच कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। 0 इंटू समथिंग -1 to 1 में किसी भी या किसी भी क्वांटिटी में अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा दिस बिकम 0, वो 0 कर देगा। एंड ऑल्सो राइट हैंड लिमिट, सो राइट हैंड लिमिट 0 प्लस h तो सेम आएगा h स्क्वायर साइन 1 बाई h, और यहाँ पे h आ जाएगा, बट ये कैंसिल आउट होगा तो ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी। डेरिवेटिव नॉट लिमिट, दिस इज डेरिवेटिव, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ये फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है। लेकिन कभी कभी डेरिवेटिव एक 0, कभी कभी क्या करता है इसी को मात्र x साइन 1 बाई x पूछ देगा। इन दैट केस व्हाट हैपन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिमिट में तो x साइन 1 बाई x दिस बिकम 0, सो दिस बिकम 0, तो कॉन्टिन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट व्हाट हैपन हियर, जब यहाँ पे h होगा तो दैट h विल बी कैंसिल आउट हियर, साइन 1 बाई h एनीथिंग h टेंस टू 0, तो यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट में आप देखेंगे तो वी कैन नॉट सेट दिस थिंग ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी कैन, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन पे हम आप इसको देखेंगे, हाउ वी कैन फाइंड दिस थिंग, कैसे करना है उसको एनालिसिस करिए। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बुक्स में लीजिए, जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आप लेकर के उनको सॉल्व करिए। कोई डाउट हो या इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो जो लिंक होगा वो लिंक पे आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट के थ्रू आपको पुनः जो है उसका डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगी। तो इस तरह से आज का जो ये सेशन है, आज का ये जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, नेक्स्ट सेक्शन होगा। और यदि आपको कोई नए टॉपिक में और पढ़ना, क्योंकि समय तो ज़्यादा है नहीं, तो कुछ और टॉपिक का अगर विशेष रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, तो उस टॉपिक पे हम अलग से एक वीडियो और जो है आपको बनाया जाएगा। तो इस तरह से करिए। थैंक यू।